Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classrooms. Today we are going to revise the chapter patterns. Okay, few of the students have done some mistakes in the few questions, so that is why I am explaining this again. We are revising this chapter again. Okay, so we have started the chapter pattern with a simple example. When you stand in front of a mirror, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हो and the image formed in the mirror, जो इमेज आपका मिरर में बनता है, that is the mirror half of your image. तो हम लोग का पैटर्न शुरू होता है मिरर हाफ से, या जिसको हम लोग बोलते हैं मिरर हाफ ऑफ ए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप आल्सो. तो अभी उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे देयर इज सम ज्योमेट्रिकल शेप. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल शेप स्टार्टिंग विद द स्क्वायर. स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ. स्क्वायर, ये दिस इज द ज्योमेट्रिकल शेप. स्क्वायर यू ऑल माइट हैव लर्न आल्सो दैट the all the sides are of same length, that is called square. So here if you want to draw the mirror half, that means you have to distribute this into two same types. दो तरह से इस तरह से बांटना है कि उसका सेम तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो क्या हम लोग इसको इस तरह से बीच से डॉटेड लाइन से डिवाइड कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. ठीक है, अब मान लेते हैं इसको ना करके कोई जो है अदर साइड से करना चाहते हैं, मींस वर्टिकल से करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल से करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो दे कैन डू लाइक दिस आल्सो. ओके, सो दिस इज इन केस ऑफ ए स्क्वायर. सपोज वी आर टेकिंग ए रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल अगर लेते हैं, सो रेक्टेंगल का भी दैट विल आल्सो बिकम सेम. रेक्टेंगल में भी सेम हुआ, दो तरह से हम लोग कर पाएंगे. मान लेते हैं रेक्टेंगल में क्या होता है, the length is more than the breadth. तो दो opposite side जो होता है वो equal होता है. The length of this side will be equal to the length of this side and length of this side will be equal to the length of this side, but length of one particular side will be more. This side is more than this, that is. So this one also we can divide it from middle of this, either from this side or from. So this is all about the mirror half. To divide a mirror half in a geometrical shape which is a square shape. Okay, square or rectangle shape. So these are the two shapes, rectangles and square shapes. You can write the name of the shapes also. Now we will discuss the another shape. Another shape which we have learned are as like triangle. So if we are talking about triangle, this is the triangle. So what will be the mirror half of triangle? Either you can do from this side. This side also you have to take care that it should be equal. So equal in size should be. This side should be need to be equal to this side. That is, then only it can be equal. Okay, mirror half. And suppose this is the triangle. मान लेते हैं ये एक triangle है और you are doing half from this. So this is wrong. This will not be correct. Okay, so this is the exactly the mirror half of the image. Okay, so कुछ भी आपको इस तरह से geometrical shape दिया हुआ रहता है, so you can find the mirror half like this. Suppose this is a circle. एक सर्कल है, इसका mirror half निकालने बोला जाता है. So this you can draw from any side, but it should be passes through the middle only. ये center जो होता है, this is called center. So from center only it should be passes, otherwise you can draw from any one of the side. So this will be the mirror half of a circle. एक circle का mirror half इस तरह से निकाल सकते हैं, एक triangle का इस तरह से निकाल सकते हैं. ठीक है. So now can it possible to draw a mirror half of other any geometrical shape, as like if we are talking about this type of any geometrical, this type of any shape. इस तरह का अगर कोई शेप है, क्या इसका हम मिरर हाफ निकाल सकते हैं? नहीं, बिकॉज आप इसको कहीं से भी डिवाइड करो, इट विल नॉट बी इक्वल टू पार्ट्स, है ना? होगा, बट दिस इज नॉट लाइक यूजिंग स्ट्रेट लाइन. यू कैन नॉट, अगर यहाँ से ड्रॉ करते हो तो दिस विल बिकम रॉन्ग, गलत हो जाएगा. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. So this is the basic thing of the pattern, geometrical pattern. If we are talking about
exercise 14.1 we have some questions. There is also some of the students have done mistake. First question everyone does correct. First question इस तरह से है, तो इसका मिरर आपको ड्रॉ करना है और नंबर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. I mean through by which you can divide it into two parts. तो इसको यहाँ से किया है सबने. This is correct. Okay. But if you are talking about question number second, third, these all are also correct. Which are talking about the geometrical shape. Suppose A है English alphabet इस तरह से है. So this is also done correct by everyone. Suppose this is A. So if you want to draw the mirror of this, then you can draw like यहाँ से डॉटेड लाइन पे अलग करके आप दिखा सकते हो. ठीक है. Now उसके बाद M है. English alphabet suppose M है. तो M का कैसे कर सकते हो? That also you can draw like this. Suppose this is M. So you can draw. ठीक है. So this is all about the mirror hub of a image. Suppose उसके बाद हम लोग का स्क्वायर है. स्क्वायर which I have already explained. Then Q कहाँ? यहाँ पे भी few of the students have done mistakes. Suppose I am talking about English alphabet Q. अगर Q का बात करें इस तरह से. So is it possible to draw the mirror hub of this? No. Why not? Because आप अगर यहाँ से करते हो, so this will not come in this side. ये एक साइड में नहीं आएगा. So that will not be mirror hub. तो इसका हम लोग mirror hub नहीं ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इधर से भी करते हो, so this will not come in that side. इधर ये चीज इस साइड में नहीं है. तो this should be in both the side, either this side or this side. तभी जो है इसका मिरर आप ड्रॉ कर सकते हो. इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन व्हिच वी यूज्ड टू ड्रॉ in the middle one, that is called line of symmetry. So here you cannot draw the line of symmetry. Okay. So this you need to leave. Okay. This question you don't need to do because in the question itself it has told that whichever possible. जिसका होगा उसी का बनाना है. जो those who will not possible, which will be not possible, that you have to no need to draw anything. That you have to leave. Okay. Next we have is one curve. So here also few of the students have divided this curve into two parts. तो आप अगर कर्व को भी देखोगे तो यहाँ पे भी हम लोग का जो हैंडल है वो दोनों तरफ नहीं होते हैं. ये जो हैंडल होता है ये दोनों तरफ नहीं होता है. सो whoever is dividing like this, that is wrong, incorrect. Okay. ये भी इसका भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगा. हाँ तब होगा अगर इस साइड में भी मान लो ऐसा आता है तभी होगा. अदरवाइज the line of symmetry cannot be drawn of this particular image. neither you can draw from this side. अगर इधर से ड्रॉ करते हो ये तो ओपन स्पेस है, क्लोज है, तो भी सिमेट्री नहीं होगा. अगर इधर से ड्रॉ करते हो इधर एंगल इधर नहीं है तो भी ये सिमेट्री नहीं होगा. सो द लाइन ऑफ सिमेट्री कैन नॉट बी ड्रॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर इमेज. ओके. दिस पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट. ओके. दीस आर द ऑब्जेक्ट्स. Now if we are talking about chocolates, okay, because both the sides of wrapper is there, so that can be okay. And now next we have pen. Here also few of the students has done this as like drawn the mirror hub, but I am explaining how this will not be. मान लेते हैं ये कलम है. ठीक है. This is one pen. Okay. So what do you think? How is it possible to draw the line of symmetry? अगर इधर से line of symmetry draw करते हो, then this is not similar to that side. अगर middle से करते हो तो this side also not similar to that side. So this also is not possible. Pen का भी नहीं बनेगा. ठीक है. So you have to leave this one also. You need to draw the line of symmetry of this pen also. Okay. After that we have is ball. Yes, ball का तो बनेगा. That everyone has done correctly. After that English alphabet T. English alphabet T में भी some of the students have done mistakes, so I am explaining how. So this is English alphabet T, then how can draw? इधर से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. So we have to draw from the middle of the this. इसका बीच से करना है ताकि half of the image come this side and half of the image come that side. So this is the line of symmetry in a geometrical in a English alphabet T. Okay. T के बाद हम लोग आगे पोटैटो जैसा साइन दिया हुआ है या स्टोन बोल सकते हो. दैट उसका भी नहीं बनेगा बिकॉज इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने इसका भी बनाया है, विच इज रॉन्ग.
this cannot be drawn because this side is not similar to that side, or neither this upper side is similar to down side. So neither you can draw the horizontal line of symmetry, neither you can draw the vertical line of symmetry. तो इसमें भी line of symmetry you cannot draw. Okay, so इसको भी आप लोगों को छोड़ देंगे. उसके बाद अगर बात करें इस तरह का इसका चक्का का, तो इसका बन जाएगा, ठीक है. इसका सही बनाया है हमने, आइदर फ्रॉम द मिडिल और दिस साइड. So this is correct for everyone. Now if you are talking about mango का भी किसी ने बना दिया है, which is not possible. मैंगो का भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंगो में क्या होता है, इस तरह से होता है ना, ठीक है. और हम इसको अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं. हाँ, मैंगो में भी आप देखोगे तो इस साइड लीफ है, तो इसमें भी अगर देखोगे, if you divide this from medial side, so this side is not similar to that side, so this will also be not possible. तो मैंगो में भी हम लोग का लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगा. उसके बाद एक कीला दिया हुआ है, वन that type of things it is given. So इसका बनेगा कि नहीं, that it is asking. इसका भी हम लोग का जो है from the middle, let's see, no, this is I think key, this is key. Okay, तो key का भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि key में जो है, key में भी जो होता है, both the side are not similar. तो this side we have this type of things, but this side we don't have. So this is also not possible to draw the line of symmetry. Okay. Then English alphabet B is there. So therein it is possible. So suppose this is English alphabet B. ये मान लेते हैं English alphabet का B है. Okay. So here very easily you can draw the line of symmetry from the middle like this. Okay. So this is how you can solve the questions related to 14.1. Now if we move to the 14.2, then we have some patterns of the shape only, geometrical shape only. There is also maximum two students is here one line is here. So next it is come two line. Okay. Then next it has come three line. Okay. So next it will come 4 line. 1, 2, 3. So now it will come 4 line. Okay. So this is how whatever the next it will be 5 line. 1, 2, 3, 4, 5. So wherever you are drawing the next line, you have to see the back one, previous one. यहाँ पे एक था, यहाँ पे 2 हो गया, फिर एक इधर चल गया 3 हो गया, फिर यहाँ पे 3 से एक बढ़ गया 4 हो गया, ऐसे फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट पैटर्न जो होगा, फिर वहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह से बनाना है. कुछ स्टूडेंट्स ने इसको गलत बनाया था. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. इसको आपको ध्यान रखना है कि 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है. यहाँ तक तो आपका दिया ही हुआ है. ठीक है. यहाँ तक आपका दिया हुआ है. अब यहाँ से जो जाएगा, यहाँ पे और एक यहाँ इंक्रीज हो जाएगा जब नेक्स्ट से भी हो दिस वन. ओके. तो यहाँ पे कितना लाइनिंग होगा? 1, 2, 3, 4, 5 लाइनिंग होगा. और इसी तरह से होगा पैटर्न. ठीक है. नेक्स्ट में क्या होगा? 6 होगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर और भी नेक्स्ट बोला जाए तो 7 हो जाएगा वहां पे. तो वहां पे कितना होगा? इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इस तरह से 7 हो जाएगा नेक्स्ट. तो इस चीज को ध्यान में रखना है. गलत नहीं करना है, इसको गलत नहीं बनाना है. ठीक है. उसी तरह से अगर हम लोग बात करें जस्ट सेकंड वाला का, वो जस्ट अप साइड से है, अप एंड डाउन साइड से है. ये इस तरह से था, तो वो अप एंड डाउन करके है. ठीक है. वो भी सेम है, ऐसे ही है. तो सेम थिंग. सो लेट्स सी दैट वन. तो उसमें पैटर्न क्या है? फर्स्ट एक लाइन है इस तरह से. ठीक है. उसके बाद एक लाइन गया है इस तरह से. ठीक है. उसके बाद जाएगा एक लाइन, सेम चीज, सेम पैटर्न विल बी फॉलो. 1, 2, 3 इस तरह से जाएगा. ठीक है. अब उसके बाद आया है 1, 2, 3, 4. यहाँ तक दिया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ. सो 1, 2, 3, 4. नाउ
whatever the next suitable we want will come down. Okay, very simply. तो ये तो पहले तो इसको बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और एक डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा जो पूछा जा रहा है। अब इसके बाद जो आएगा वो 1 2 3 4 5 और एक अप साइड जाएगा 6, तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट जब आएगा उसमें 7 हो गया, तो ये ड्रॉ करेंगे और एक नीचे साइड में करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा, ठीक है। So this is how you can write the geometrical patterns of exercise 14.2 का जो भी क्वेश्चंस है इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे एक जो क्वेश्चन है उसमें भी मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन मिस्टेक्स, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। दैट इज रिलेटेड टू द एरो से रिलेटेड है, तो आपको वो चीज ध्यान में रखनी है कि एरो कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है सिर्फ एक लाइन ही दिया हुआ है, एक सिर्फ दिस इज द लाइन ओनली, ओके। इन सेकंड स्टेप व्हाट हैपेंस इन द लाइन, फर्स्ट वन साइडेड एरो इज देयर, तो एक साइड का सिर्फ एरो दिखाया गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में जो है दो साइड का एरो दिखाया गया है। इन द नेक्स्ट फिगर द एरो हैज शोन ऑफ बोथ द साइड, ओके, दोनों साइड का। उसके बाद नेक्स्ट में और एक लाइन ऐड हो गया है इस एरो के साथ, सो वन मोर लाइन हैज बीन एडेड हियर लाइक दिस, ओके। सो वेरी सिंपली कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, तो यहां से जो नेक्स्ट फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत ही इजी है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस जो पैटर्न है उसको बनाएंगे, तो इसको पहले हम लोग अगर बनाते हैं, तो चलिए ये बनाते हैं, ये हमारे बन गया है जो प्रीवियस फिगर था। अब हम आएंगे यहाँ पे, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वन साइडेड एरो बना देते हैं, तो यहाँ पे वन साइडेड एरो इसका बन जाएगा, सो दिस विल बी द नेक्स्ट फिगर, ओके। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दोनों साइडेड एरो में इस एरो इसमें दोनों साइड में एरो हो जाता है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ये सबसे पहले ये तो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाद ये बोथ द साइडेड एरो हो जाएगा, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट इसके बाद क्या पैटर्न बन जाएगा, सबसे पहले ये तो ड्राइंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अब ये बनाने के बाद यहाँ पे एरो था, एरो के बाद क्या हुआ, नया एक लाइन ऐड हो गया, तो यहाँ भी हमारे नए और एक लाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद और भी बनाना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो ड्राइंग है वो बनाना ही है, ये हो गया, ये हो गया। अब जो है इसमें हाफ लाइन हम लोग ऐड करेंगे इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट फिगर जो बनेगा ये बनाएंगे और डबल लाइन ऐड करेंगे, और भी बनाना हो तो और इस तरह से लाइन ऐड करके करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू 14.2। यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करनी है, इसी तरह से आपको बनाने हैं, ठीक है। Now we will discuss some number pattern which we have in next exercise, okay, which is 14.3. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने ये बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू चेक इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। If it is increasing then how much it is increasing, if it is decreasing then how much it is decreasing, ये सबसे पहले हमें चेक करना है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये जो दो कंटिन्यूअस नंबर है अगर आप डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हो तो उस दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए 78 बड़ा है तो पहले 78 लिखेंगे, फिर 72 है तो 72 लिखेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हर बार जो है 6 6 बढ़ रहा है। आप अगर ये चीज नहीं पता चले तो ये दोनों का भी डिफरेंस फिर बाद में आप निकाल सकते हो, ये भी 6 ही आएगा। चलिए सी, तो यहाँ पे 84 है और 78 है, ठीक है। सो 8 प्लस 6 इज 14, सो 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 14 किए थे तो 7 हो गया, 0 so 6 हो गया। तो इसका मतलब हर बार यहाँ पे 6 6 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट नंबर लिखना है उसमें भी 6 ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 72 प्लस 6 हो गया 78, 78 प्लस 6 हो गया 84, सो 84 प्लस 6 हो जाएगा 90, 90 प्लस 6 हो जाएगा 96, 96 प्लस 6 हो जाएगा 102, राइट, 102 हो जाएगा ना। So this is how you can write the sequence of a particular
number. Okay. Now this one you can see it is decreasing. ये घट रहा है. तो कितना घट रहा है चेक करने के लिए again we will find the difference of these two. So this is greater and this is less. So first we will write 120 then 140. तो इसको चेक करो कितना होगा 6. Okay. 6 then 111 so 0 0. Okay. इसका मतलब यहाँ भी हमारे 6 जो है डिक्रीज हो रहे हैं. तो अगर यहाँ पे 6 डिक्रीज होते जाए यहाँ से फिर 6 डिक्रीज होगा तो कितना होगा 102. 102 से फिर 6 डिक्रीज होगा तो कितना होगा 96. 96 से फिर 6 डिक्रीज होगा तो कितना होगा 90. तो इस तरह से दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द नंबर सीक्वेंस ऑफ ए गिवन नंबर. यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है राइट. यहाँ भी घट रहा है 726 से 720 हो गया मतलब 6 घट रहा है. यहाँ पे 720 714 हो गया यहाँ भी 6 घट रहा है. फिर यहाँ से अगर आप 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 714 से 714 से अगर 6 जाएगा तो 4 इधर गया और 10 से 2 जाएगा राइट. तो 8 हो जाएगा. तो 708 हो जाएगा. 708 से फिर 6 जाएगा तो 702 बचेगा. 702 से फिर 6 जाएगा तो बच जाएगा 696 राइट. 696 चेक कर लो इसको एक बार. 702 माइनस 6 तो 702 माइनस 6 अगर करोगे 6 to 12 so 6 यहाँ पे 12 दिए थे तो 69 हो गया. ठीक है. So 696 right. So this is how you can write the pattern. Here you can see 81 के बाद 90 हो गया. ठीक है. 90 के बाद 99 हो गया. तो 81 plus 9 is 90. 90 plus 9 is 99. So 99 के साथ again 9 जोड़ना है तो कितना होगा 9 to 18 8 1 carry 108. Okay. So this is how again you have to add 9 here. So 8 plus 16 17 7 1 carry 11 117 right. Again you have to add 9 so 7 to 14 15 16 6 1 carry 12 right. अगर नहीं डायरेक्टली आप माइंड में कर सकते हो देन यू कैन ओनली ऐड अदरवाइज ट्राई टू सॉल्व इन माइंड. चेक कर लो यहाँ पे 99 के साथ अगर आप 9 ऐड करते हो तो 9 to 18 1 carry 108. 108 के बाद साथ में 9 ऐड कर सकते हो. 3 to 16 17 1 carry so 11 117. फिर यहाँ पे 9 ऐड करते हो तो 7 to 14 15 16 6 1 carry 12 126. So this is how you can do the questions related to chapter number 14. Okay. So I hope now you can do better than the previous one. So now your homework is do exercise 14.1 to 14.3 in your copy, homework copy. आपको copy में बनाना है. Previous time you have done in book, so now you will do in copy. So homework is exercise 14.1 to 14.3 in copy, homework copy. Thank you. Have a good time. Take care. Bye.